Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. This is a much shorter period, much shorter than even the parliamentary elections, which were 5. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase, nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. We are also keeping that in mind, not keeping Fridays and Mondays to give a longer holiday spell. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. We can show you the map also. It's how the scheduling is being done. The yellow portion is first. The yellow portion would have the districts of Kishtwar, Ramban, Doda on this side, Jammu side, and Anantnag, Pulwama, Shopian, and Kulgaon in the valley. The second phase would be Gandarbal, Srinagar, Badgaon on the valley, in the valley side, and on the Jammu side, Poonch, Rajouri, and Riyasi. And then the forces move up. So North Kashmir in the upper regions, and also the Jammu and Udhampur, Samba, and the Kathua region. This is what would be the schedule there. If we come to the schedule of Haryana, Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K, nomination being on 5th of September, last date of making nomination on 12th of September, date of poll 1st October, and date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. So friends, and through you, we appeal to all the voters of Haryana and J&K to participate in largest possible number in the festival of democracy. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will have the round of questions. I would request every one of you to please raise your hand, whoever wishes to ask a question. The mic. We will. Excuse me, please. The person in the second row, green t-shirt. तो आप लगातार देख रहे हैं कि ऐलान हो चुका है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावों का, और सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि तारीखों का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, 13 अक्टूबर को विधानसभा की जो वोटिंग है वो भी यहां पर 1 अक्टूबर को बताया जा रहा होगी, और 4 अक्टूबर को हरियाणा चुनाव के नतीजे भी आने हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जैसा कि संभावना जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर और इसी के साथ हरियाणा के चुनावों का ऐलान हो सकता है, जो कि कर दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर में देखिए 3 चरण में चुनाव हो रहे हैं। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी, जिसके बाद किसकी सरकार बनती है इसको लेकर जानकारी मिल जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 चरणों में देखिए जम्मू कश्मीर में मतदान होना है। हरियाणा की भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, 1 अक्टूबर को यहाँ पर चुनावों के लिए वोटिंग होगी, और जो मतगणना है वो 4 अक्टूबर।  4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर। 4
तो जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान यहां पर कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जहां पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक चरण में वोटिंग होगी, यानी 1 अक्टूबर को और 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के का जो तारीखें हैं उसका ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर किया गया है। हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव एक चरण में किया जाएगा और जम्मू कश्मीर की अगर यहां पर बात करें तो 3 फेजेस में चुनाव करवाए जाएंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, तो वहीं 4 तारीख यानी 4 अक्टूबर को नतीजे यहां पर सामने आ जाएंगे। तो बिल्कुल बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान यहां पर हो चुका है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अगर बात करें 3 चरण में यहां मतदान होने हैं। तारीखें आप लगातार देख सकते हैं, 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान यहां पर होगा और नतीजे 4 अक्टूबर को आएंगे। ये आपने जाना जम्मू कश्मीर की सीटों का हाल कि किस तरीके से वहां पर चुनाव की जो तारीखों का ऐलान यहां पर किया गया है। इसी के साथ में चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो वो तमाम जानकारियां देते हुए नजर आए कि किस तरीके से सुरक्षा को लेकर भी खास तौर पर वहां पर कई बैठकें की गई। जो गजट नोटिफिकेशन है वो 20 अगस्त को जम्मू कश्मीर की इस तरीके से हम बात कर रहे हैं यहां पर सामने आएगा। 25 सितंबर को दूसरा और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण के अंदर वोटिंग होगी जम्मू कश्मीर के अंदर। 4 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो यहां पर सामने आ जाएंगे। तो दोनों राज्यों के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही हरियाणा विधानसभा चुनाव का ऐलान यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी जुड़ रहे हैं, गुरसिमरन और एरावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले गुरसिमरन के पास चल रहे हैं। गुरसिमरन, बहुत लंबे वक्त से ये इंतजार था, 370 हटने के बाद अब चुनाव का वक्त आ गया है, 3 चरणों में चुनाव होने। देखिए 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और 3 हफ्ते में ही चुनाव खत्म हो जाएंगे। 18 तारीख को पहला चरण 18 सितंबर को होगा, दूसरा चरण 25 सितंबर को, तीसरा चरण 1 अक्टूबर को और 3 दिन के बाद ही 4 तारीख को चुनावों के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। 90 सीटों के लिए मतदान होंगे, जिसमें तकरीबन जो है अभी मतदाताओं की संख्या 87 लाख है, लेकिन पोल रिवीजन के बाद ये संख्या जो है 90 लाख के करीब हो जाएगी और 12,000 के करीब पोलिंग स्टेशन जो है वो बनाए गए हैं, जिसमें से कई पोलिंग स्टेशन हाइपर सेंसिटिव हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार हालात है उसे देखते हुए एक बड़ा निर्णय चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया कि 3 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। हालांकि अगर आप इतिहास में देखें तो जम्मू कश्मीर में चुनाव 5 से 6 चरणों में करवाए जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग की तरफ से 3 चरणों में चुनाव करवाए जाने का मकसद बिल्कुल साफ है कि सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है चुनाव आयोग को भी कि किसी भी देश विरोधी तत्व को जो है चुनाव में खलल डालने नहीं दिया जाएगा और चुनाव यथास्थिति बरकरार रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से होगा, जैसे लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं। अब आप एक चीज बेहद महत्वपूर्ण है कि 20 तारीख से ही पहली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, यानी कि अब से 4 दिन बाद पहली नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और उसके बाद चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। राजनीतिक दलों के लिए समय बिल्कुल नहीं बचा है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि कुल 47 दिनों में जम्मू कश्मीर के चुनाव खत्म हो जाएंगे। पहले भी हमने 8 तारीख को रिपब्लिक भारत पे बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग 2 महीने यानी कि 60 दिन के अंदर ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करेगा और 47 दिन अब आज से जो है नोटिफिकेशन की डेट जो 20 तारीख है वहां से होंगे। तो आप समझिए कि बहुत ही जल्द जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ बेहद महत्वपूर्ण यह है कि अब राजनीतिक दलों को समय नहीं मिलेगा। अभी जब हम बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का ऐलान किया गया तो भाजपा ने जो है बाकी प्रदेशों से जो कि जिला प्रभारी थे उन्हें बुला लिया है, जो कि बाकी सरकारों में मंत्री हैं, चाहे बात उत्तराखंड की जाए, हरियाणा की जाए, बाकी राज्यों की जाए, कि वो तत्काल प्रभाव से कल यहां पर पहुंचे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनावी जो है गहमा गहमी जम्मू कश्मीर में कितनी तेजी से बढ़ गई और लगातार सभी राजनीतिक दल क्योंकि अब एक्शन मोड में आएंगे। अब कैंडिडेट्स के नाम का अनाउंस करना है 90 सीटों पर इस बार क्योंकि चुनाव होना है। पहले हर बार 87 सीटों पर चुनाव जम्मू कश्मीर में होता था और 3 लद्दाख में, लेकिन इस बार 90 की 90 सीटें जम्मू कश्मीर में है परिसीमन के बाद। और कश्मीर घाटी में भाजपा जो है वो अपना खाता खोलना चाहेगी, वहीं कश्मीर के राजनीतिक दल चाहे पीडीपी की बात की जाए या नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो जम्मू संभाग में जो है अपना प्रदर्शन सुधारना चाहेगी ताकि आने वाले दिनों में जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें।